Good afternoon, students. Today we will see exercise 1.3. Subsets. Consider the sets set A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Here we see that every element of set A is also an element of set B. Okay. Then we say that A is a subset of B and write A subset B. Okay. Now we can define subset as a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. ओके अगर A के सारे एलिमेंट B में है तो हम कहते हैं A is a subset of B. Okay, and here A and B may be equal. Okay, it is denoted by A subset B. Okay, some writers denote this symbol as A subset B. Okay, this is the example of subset. Here A and B may be equal. Okay, now proper subset. And superset. If A is a subset of B and A is not equal to B, okay, A is not equal to B, then A is called a proper subset of B and B is called superset of A. Okay, then A is called a proper subset of B and B is called a superset of A. Okay, here you can see every element of A is also an element of B, but A is not equal to B. Okay, then we see that the elements of B is greater than the elements of A. Okay, then we can say that this is superset of A and A is a proper subset of B. Okay, we can take the examples as this will be the example of proper subset and superset. Here A is proper subset of B and B is superset of A. Okay, this will be the example. You can write some points to be noted. First, the symbol is a subset of, okay, it stands for is a subset of, okay, or is contained in. We can also say that A is contained in B. Okay, and also A is a subset of B. Second,
thus we can also say that if A is a subset of B, whenever an element A belongs to A implies that A belongs to B, and we can write A subset B. If A belongs to A, this implies that A belongs to B. Here A subset B means every element of A is also an element of B. Okay, then if A is an element of A, then this element A will be the element of B. Okay, third, if A is not a subset of B, we write A is not a subset of B. Okay. Fourth, if A is a subset of B and B is a subset of A, if and only if A is equal to B. Here you see that A is a subset of B, means every element of A is also an element of B. Okay, and B is a subset of A, means every element of B is also an element of A. If and only if A is equal to B. Here this symbol means, this symbol is for two-way implication. Two-way implication means for this statement we can prove this. Okay, and also from this statement we can prove this. मतलब इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं, अगर ये दोनों रहेगा तो, और इससे ये प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको टू वे इंप्लीकेशन देखो. द सिंबल if and only if is for two-way implication. Read as and is read as if and only if. Okay, usually briefly written as IFF. Okay. 6. From this statement we can get another result. You can see here, if या फिर other words में we know that every set A is equal to itself, then the set A, every set A is a subset of itself. Okay, that is A is subset of A. We know that A is equal to A. Okay, from this statement A is equal to A. कोई भी सेट खुद का तो इक्वल होगा ही, अगर जब A के इक्वल होगा तो A सबसेट A तो होगा ही. ओके, नेक्स्ट 7. सिमिलरली empty set phi is a subset of every set. जैसा कि फाई है, फाई में तो एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है ना, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं. ठीक है, और एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो ये तो हर सेट का सबसेट होगा. ओके, यू कैन राइट now subsets of a set of real number. Okay, subsets of a set of real numbers. सेट ऑफ रियल नंबर को आर से डिनोट करना है. ठीक है ना, देखो सबसे पहले फर्स्ट ये एग्जांपल्स है. ठीक है ना, ये सबसेट्स का जो रियल नंबर का सबसेट होगा. ठीक है,
फर्स्ट द सेट ऑफ नेचुरल numbers is denoted by capital N and is given by 1 2 3 and so on. 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे, मतलब ये इनफाइनाइट सेट का भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड इनफाइनाइट सेट का भी एग्जांपल होगा, साथ ही साथ ये सबसेट होगा रियल नंबर का, द सेट ऑफ रियल नंबर का ये सबसेट होगा, ठीक है। एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स is denoted by W and is given by 0 1 2 3 and so on. Okay, the set of integers is denoted by Z and is given by -3 first dot dot -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on. Next, the set of rational numbers is denoted by Q and is given by the set of all x such that x is equal to p by q. You know that the definition of rational number, a number of the form p by q is called a rational number, and where p and q are integers and q is not equal to 0. Here x is equal to p and q and pq belongs to z. You know that z is the set of integers, मतलब p और q तुम्हारा integer होगा, okay, and q is not equal to 0. Next, the set of irrational numbers is denoted by t and is given by x such that x belongs to R. x एक रियल नंबर है and x does not belongs to q. ओके, मतलब रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसमें तो रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, तो अगर उस कलेक्शन से, रियल नंबर के कलेक्शन से हम ये q मतलब रेशनल नंबर का कलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, वो कलेक्शन इरेशनल का होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस q। देख लो, ये द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये सॉरी the set of all x such that x belongs to R, मतलब x is a real number, okay, and x does not belongs to q, मतलब x जो है q में बिलोंग नहीं करता है, मतलब ये रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो रियल नंबर और रेशनल नहीं होगा, मतलब क्या हो सकता है, वो तो इरेशनल ही होगा, ओके, मतलब we can also write r minus q. Next, 6, the set of positive integers is denoted by z plus and is given by 1 2 3 and so on, okay. 7, the set of negative integers is denoted by z minus and is given by -1 -2 -3. Okay, we can also write the set of positive rational numbers, that is q plus, and the set of negative rational numbers q minus, okay, and these all are the examples of subsets of rational numbers, okay. You can write next, intervals as subsets of R, means the set of real numbers, okay. Intervals जो है as a subset of R. देख लो इंटरवल्स क्या होते हैं, जैसे कि रियल लाइन सबको पता है, ठीक है, ये एक रियल लाइन हो गया,
रियल लाइन को अगर हम ब्रेक करते हैं टुकड़ों में, जैसे ये पहला फर्स्ट, ठीक है ना, ऐसे हम तो पार्ट कर सकते हैं, तो हर पार्ट एक इंटरवल होगा। अब देख लो इस इंटरवल, जैसे कि हम पार्ट किए हैं, फर्स्ट पार्ट किए हैं, तो यहाँ पे इंड पॉइंट मिला हमें, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो ए और बी तो पॉइंट, इंड पॉइंट हमको पता हो गया। अब ये दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, और उसी का जो सेट होगा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, and here we can include these numbers, exclude these numbers, okay, and these are the cases of intervals, okay. So we can see the first case, मतलब कब इसको हम इंक्लूड करेंगे, कब एक्सक्लूड करेंगे, कब एक को इंक्लूड करेंगे, कब इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, कब इसको एक्सक्लूड करेंगे, कब इसको एक्सक्लूड करेंगे, अलग अलग केसेस होंगे। तो वो फर्स्ट सबसे पहले हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय इन स्मॉल ब्रैकेट, ओके, ए बी, एंड इज गिवन बाय x such that x belongs to R and x is greater than A and is less than B, okay। देखो ये फर्स्ट केस तुम्हारा, इसको अभी इरेज करते हैं। जैसा कि अभी भी बोले हैं, पार्ट लिए थे हम नंबर लाइन का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम ए और बी को पहले इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। देख लो ये फर्स्ट केस, अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो उससे जो कलेक्शन मिलेगा हमारा, उसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, ओके। एंड ओपन इंटरवल इज गिवन बाय द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मींस एक्स रियल होगा सभी रियल नंबर्स के लिए, ठीक है ना, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। एक्स जो है ए से ग्रेटर है, ए के इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे ए को। एंड एक्स इज लेस देन बी, लेस देन का मतलब कि बी से छोटा हो सकते हैं, ठीक है ना, बी नहीं हो सकता है, इक्वल अगर रहेगा यहाँ पे तब तो बी होगा, तो इसीलिए हम दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी साथ ही साथ कर दे रहे हैं। जैसा कि ये दो पॉइंट्स है, फर्स्ट इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब सर्कल बना देंगे सिर्फ, ठीक है, दोनों नंबर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है ना, इसके बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड किए हैं। सेकेंड क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जब इन दोनों नंबर को इंक्लूड करेंगे, जैसे इसका फिगर देख लो, तो इसको हम पॉइंट कर दे रहे हैं, ठीक है, ए और बी। यहाँ पे तो सर्कल सिर्फ बना दिए थे, मतलब इंक्लूड नहीं किए थे, खाली रखे थे, और इसको डॉट कर दिए हम। इस दोनों को इंक्लूड करेंगे तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, है ना, एंड डिनोट करते हैं ऐसे क्लोज्ड इंटरवल को, है ना। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस आर इक्वल टू सी। तो कैसे पढ़ेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन ए और ग्रेटर एंड इक्वल टू ए एंड लेस देन बी एंड इक्वल टू बी, ओके। हियर एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स ए के इक्वल है और एक्स बी के भी इक्वल है, मतलब दोनों पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे, है ना, और दोनों को डॉट करेंगे। और ये इसका सिंबल है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे, है ना। तो थर्ड, जैसे कि ऐसा भी केस हो सकता है, कब इसको इंक्लूड करेंगे, कब इसको एक्सक्लूड करेंगे। एक केस भी तो हो सकता है, यहाँ पे दोनों को एक्सक्लूड किए थे, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड किया है। और थर्ड केस जो हमारा है, एक को इंक्लूड करेंगे और दूसरा को एक्सक्लूड, ठीक है। तो ये तुम्हारा है ओपन इंटरवल ए बी, और ये है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ये है लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन, ओके।
देखो लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन इंटरवल, इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, डिनोट करेंगे। देखो x such that x belongs to R एंड यहाँ पे तुम्हारा क्लोज्ड है, लेफ्ट क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड के लिए हम इक्वल टू भी यूज करेंगे क्योंकि ये इंक्लूड करेंगे ना नंबर, इसीलिए इक्वल टू का सिंबल लगेगा। और यहाँ पे ओपन है राइट, मतलब सिर्फ लेस देन लगाएंगे, है ना। और इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ लेफ्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लोज था ना, अब ओपन करेंगे और राइट को क्लोज्ड, तो लेफ्ट ओपन हो गया और राइट क्लोज्ड हो गया। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड यहाँ पे तुम्हारा ओपन है ना, फर्स्ट ओपन मीन्स सिर्फ लेस देन x एंड यहाँ पे क्लोज्ड है, क्लोज्ड मीन्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे ओपन था तो सर्कल बना देंगे और ये क्लोज था, ठीक है, और इसको सिंबल देंगे A B, ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको नंबर लाइन पे। इसके अलावा भी होते हैं, ये तो सब बाउंडेड्स के लिए है चारों, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बाउंड्री पता था हमें, तो इसलिए इसको हम बाउंडेड बोल सकते हैं, है ना। देखो ये केस बना दे रहा है, ये चारों तुम्हारा बाउंडेड के लिए है, ठीक है। ये फर्स्ट केस था, बाउंडेड के लिए चारों हो गया, बाउंड्री पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, है ना। और अनबाउंडेड के लिए देखो, जैसा कि हम नंबर लाइन इंटरवल को ऐसे ले रहे हैं, फर्स्ट ए और इधर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड के लिए, मतलब लेफ्ट में बाउंडेड कर रहा है और राइट में अनबाउंडेड, ये बी कर ले रहा है, ठीक है। ये ए और ये बी, लेफ्ट बाउंडेड एंड राइट अनबाउंडेड, ये एक केस है तुम्हारा, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है, तो इसको कब हम इंक्लूड करेंगे, कब एक्सक्लूड करेंगे, ये भी तो केस है इस पॉइंट को। तो सबसे पहले फर्स्ट केस इसके लिए, या फिर फोर्थ है तो इसको फिफ्थ कर ले रहे हैं। ध्यान देना, इसको अगर ओपन रखेंगे तो इसको लेफ्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा लेफ्ट ओपन, जब लेफ्ट ओपन रहेगा तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ओपन का सिंबल ये हो गया स्मॉल ए एंड यहाँ पे इनफाइनाइट, अनबाउंडेड है, ठीक है ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटी सिंबल है ये। इसको कैसे हम इंडिकेट रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देना। और इसका फिगर में अगर ये ओपन रखे हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो थोड़ा दूर कर रहे हैं इसको, इसको सर्कल बनाएंगे और इधर इनफाइनाइट लिख देंगे, ठीक है। x सच दैट, ये तुम्हारा लेस देन है ना, x जो है, जैसा कि इसको हम यूज करके लिख सकते हैं, देख लो, जैसा कि यही ना केस है, फर्स्ट a और b, तो यहाँ पे a पता है हमको, ये इनफाइनाइट हो गया है, सेम ऐसे ही लिखेंगे, है ना। a इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं, देखो जैसा कि a तुम्हारा ऐसे होगा और इसको हम ऐसे लिखते हैं जनरल, x सच दैट x इज ग्रेटर देन a, ओके, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, है ना, और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लेफ्ट क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड मतलब ये, तो क्लोज्ड के लिए क्या बताना है, इक्वल टू भी आ जाएगा ना, क्लोज्ड मतलब इंक्लूड हो जाएगा ये नंबर, मतलब इक्वल टू होगा x के, ऐसे। फिर अभी और दो केस मिलेंगे, राइट, जैसे कि ये लेफ्ट ओपन है तो राइट भी ओपन हो सकता है, इधर माइनस इनफाइनाइट हो सकता है ना, तो वो अगला केस हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तुम खुद से कर सकते हो, एक हम कर दे रहे हैं, जैसा कि राइट
ओपन कर रहे हैं, तो राइट ओपन करेंगे तो इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर बी कर लो, तो ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे और x सच दैट x इज लेस देन b, ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। और जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ एग्जांपल्स इसका दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर सकते हो। देखो अभी एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर ओपन इंटरवल हम दे रहे हैं -4 और इधर 5, इसको कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान देना। x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 5, ओके। ऐसा हम लिख देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जब सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, सेम इसका यूज करके। जैसे कि यहाँ पे ए के प्लेस पे है -4, बी के प्लेस पे है 5 और ये ओपन का सिंबल है, ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है। तो ओपन का केस क्या आया, x इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, सेम उसी तरह यहाँ पे कर दिया है ना। तो ऐसे इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम ये भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे दिया है, मान लो 6 लेफ्ट क्लोज्ड, ये सॉरी लेफ्ट तुम्हारा है क्लोज्ड ही है और इधर 5 कर देना है और इधर ओपन कर देना है ना। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसका यहाँ पे है थर्ड नंबर, लेफ्ट क्लोज्ड है और राइट ओपन है। तो क्या है, क्लोज्ड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू भी इंक्लूड, मतलब ये नंबर इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है ना। कि ए जो नंबर है ए के इक्वल, x जो है ए के इक्वल है, मतलब यहाँ पे ए इंक्लूड रहेगा और बी एक्सक्लूड रहेगा। इसमें देख लो राइट में क्लोज्ड है और इसमें ओपन है लेफ्ट, तो लेफ्ट को एक्सक्लूड करेंगे, ओपन मतलब एक्सक्लूड और क्लोज्ड मतलब इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। और लिखेंगे कैसे, जैसे कि -6 है, ये है क्लोज्ड, क्लोज्ड में इक्वल टू यूज करते हैं एंड लेस देन, यहाँ पे ओपन है तो लेस करेंगे, तो ये हो गया। अगला एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे, द सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स that is in interval, in the form of interval we can write this as -infinite and 0। मतलब ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर एंड लेस देन 0। कोई भी नंबर लेस देन 0 होगा मतलब निगेटिव होगा ना, तो सारे निगेटिव रियल नंबर्स का ये कलेक्शन, ठीक है। एंड द सेट ऑफ real numbers can be written as -infinite और इधर infinite, ओके। ऐसे कर सकते हो, एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हम इंटरवल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, लाइंग बिटवीन टू नंबर्स, ओके, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इंटरवल को। नेक्स्ट पावर सेट, एक चीज तो अभी छूट गया, द लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर लेंथ निकालना है इंटरवल का तो क्या करेंगे, जैसा कि हमारे पास दो नंबर था ना a और b, तो b माइनस a कर देंगे तो वो लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हम नोट में लिख सकते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है, लिख दे क्या कर सकते हो, लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल टू b माइनस a, सबके लिए है ना, चारों के लिए है, चारों तुम्हारा बेस है, बेसिक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वही तुमको याद करना है, नीचे वाला उसका यूज कर सकते हैं वैसे ही, ठीक है। देखो पावर सेट, पावर सेट जो होता है अ कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स ऑफ
A collection of subsets of a set A is called a power set. Okay, we can write a collection of subsets of a set A is called the power set. Okay, देख लो, द कलेक्शन आर सेट भी बोल सकते हैं हम, अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, सेट ए के जितने भी सबसेट्स है उसका कलेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय पीए. ओके, इफ एन ए इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ सेट ए हमें गिवन है m है, तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, 2 to the power m होगा, ठीक है ना, ये जनरल है फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल लेट a इज इक्वल टू 1 and 2, सेट a इज इक्वल टू 1 2 लिया है, ठीक है. यहाँ पे हमें पावर सेट फाइंड करना है, देख लो कैसे. तो पावर सेट क्या होता है, सेट ए के जितने भी सबसेट्स है सबका कलेक्शन, ठीक है ना. तो कितने सबसेट्स होंगे इस सेट के लिए, सबसे पहले हमको पता है, पॉइंट्स में लिखवाए भी थे कि जो फाइव होता है सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है. तो फाइव जो है पहला तुम्हारा सबसेट हुआ इसका. अगर हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें सिर्फ एलिमेंट 1 है, ठीक है ना, और इसको करली ब्रैकेट में लिखा है, ब्रासेस में लिखा है ना, तो ये एक सेट हुआ. ये सेट और ये सेट कंपेयर करो, इस सेट का एलिमेंट इस सेट में है ना, मतलब ये इसका सबसेट हुआ, तो ये दूसरा सबसेट हो गया. तीसरा सबसेट, अगर सिर्फ 2 ले रहे हैं, ये भी एक सेट है. एक चीज और ध्यान देना, ये जो पावर सेट है ना, पावर सेट जो है सभी सबसेट का ये कलेक्शन है, मतलब जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे सारे सेट ही होंगे, है ना, जैसा कि पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, ठीक है. और क्या मैक्सिमम हो सकता है, अगर ये सेट लिया है, इसके एलिमेंट्स इस सेट में है, तो ये भी इसका सबसेट होगा. यहाँ पे मैक्सिमम हमें 4 एलिमेंट्स मिले हैं, चारों सेट है. अब ये सब सबसेट भी तो है इस सेट के लिए, तो इन सभी सबसेट का कलेक्शन तुम्हारा पावर सेट होगा. देख लो, कलेक्शन मतलब इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इन सबको सेट में लिखते हैं, सेट फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है ना, फॉर्मा करके और प्रोसेस में. इसको डिनोट करते हैं पीए से, तो ये तुम्हारा पावर सेट हो गया, ठीक है. और इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेट ए, देख लो, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना है, 1 and 2, दो है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ पावर सेट 2 to the power m होता है ना. यहाँ पे देखो m a इक्वल टू m है, यहाँ n इक्वल टू 2 है ना, m इक्वल टू 2 हुआ, देयरफॉर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a इक्वल टू 2 to the power m, तो m इक्वल टू 2 है, 4 आ गया. अब देखो ये पावर सेट के कितने एलिमेंट्स है, नंबर कितने हैं, 4, क्या 4 आया है, देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ही एलिमेंट्स है, ठीक है. तो ऐसे हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है सुपर सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट, इसको इरेज कर दे रहे हैं. यूनिवर्सल सेट, ठीक है. यूनिवर्सल सेट इज अ बेसिक सेट. ओके, मतलब एक ऐसा सेट जो जितने भी गिवन सेट्स है उसका सुपर सेट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट. देख लो, अ बेसिक सेट विच इज अ सुपर सेट of each one of the given sets. हमारे पास 3 या 4 या 5 जितने भी सेट्स गिवन है उस सभी का सुपर सेट जो होगा
उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल U, ओके। U means universal set. For example, if A is equal to 1 2, B is equal to 2 3, C is equal to 8 and 9, देख लो। अब एक ऐसा हमें बेसिक सेट फाइंड करना है जो इन सारे का सुपर सेट हो जाए। द यूनिवर्सल सेट for these sets can be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लो, ये एक ऐसा सेट है ना जो सारे का सुपर सेट है, चेक कर सकते हो। A is a subset of U, B is a subset of U, C is a subset of U। जब ये सारे सबसेट है इसका मतलब ये सुपर सेट हुआ, ठीक है। और ये सब प्रॉपर सबसेट हुए इसका, तो इसलिए ये सुपर सेट हुआ। और ये यूनिवर्सल सेट जो है तुम्हारा डिफरेंट भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट बहुत सारा हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो। फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर ये भी हो सकता है, या फिर जनरल बोल सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देख लो यहाँ पे दो हम यूनिवर्सल सेट लिखे हैं इस सेट के लिए, द सेट ऑफ इंटीजर्स है, और ये जो सेट लिखे हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल में तो सारे इंटीजर्स इंक्लूड हो सकते हैं ना, उसी तरह रियल में तो सारे रेशनल भी इंक्लूड हो जाएगा। ये रेशनल के लिए भी तुम्हारा सुपर सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो सकता है। Now let's proceed to question exercise 1.3। Question first, make correct statements by filling in the symbols subset or is not a subset in the blank space। फर्स्ट करना है make correct statements, जो आप निकाल रहे हैं। by filling ठीक है, ये फिल करके तुमको करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट देखो 2 3 4 यहाँ पे डॉट डॉट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकेंड में देख लो ABC BCD, दो देखो पहले तुमको करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है ये फिल करके, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये फर्स्ट सेट हुआ, ये सेकंड सेट, जैसे कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स, each element, every element of this set is also an element of this set, okay, therefore we fill is a subset, okay। Here in second question we see that every element of A
is not an element of B. Okay, therefore we feel is not a subset of. अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है मतलब सबसेट नहीं है, ठीक है। थर्ड देखो, X such that X is a student of class 11 of your school. ओके, और यहाँ तुमको फिलिंग करना है, और इधर X such that X student of your school. देख लो इसको, ये जो कलेक्शन है फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट है सबका ये कलेक्शन है, ठीक है। और इधर देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब ये कैसा कलेक्शन है, तुम्हारे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो सारे स्टूडेंट्स में ये क्लास 11 वाले तो इंक्लूड करेंगे ना, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें तो होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसेट ऑफ। चलो फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल in the same plane with radius 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस जो है 1 यूनिट दिया है, यूनिट मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं ये जो कलेक्शन है तुम्हारा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, जैसा कि ये प्लेन है, इस प्लेन पे जितने भी सर्कल बनाएंगे अलग अलग रेडियस का, उन सारे का ये कलेक्शन है, ठीक है। इधर देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन पे विथ रेडियस 1 यूनिट, ये सिर्फ 1 यूनिट का इसमें सर्कल्स है ना, इस कलेक्शन में सिर्फ 1 यूनिट के, और इस कलेक्शन में हर मतलब रेडियस जो है, रेडियस का लेंथ तुम्हारा कुछ भी हो सकता है ना, और यहाँ पे सिर्फ रेडियस 1 यूनिट का है, तो इसमें तो अलग अलग लेंथ के रेडियस है ना, तो ये सबसेट तो होगा नहीं, मतलब इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक है। इस कलेक्शन में सिर्फ 1 यूनिट का रेडियस है और इसमें डिफरेंट यूनिट का है, 1 2 3 4 5, तो ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, यहाँ फिलिंग करना है। X such that X is a rectangle, X such that X is a rectangle in the plane। देखो ये फर्स्ट कलेक्शन, ये सिर्फ ट्रायंगल का कलेक्शन है और ये रेक्टेंगल का कलेक्शन है, तो इसके एलिमेंट्स इसमें होंगे नहीं ना, क्योंकि इसमें तो ट्रायंगल्स भरे हैं और इसमें रेक्टेंगल्स, तो ये तो ऐसे ही सबसेट नहीं होगा। चलो 6 नंबर, नेक्स्ट, x such that x is an equilateral triangle, x such that x is an equilateral triangle, आगे equilateral triangle in a plane, okay, x such that x is a triangle in the same plane, और ये है एक सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। देख लो, ये फर्स्ट कलेक्शन जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कलेक्शन है, इक्विलैटरल, इसमें लेंथ तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइड तुम्हारा इस ट्रायंगल का कुछ भी हो सकता है, और ये जो कलेक्शन है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल का कलेक्शन है और ये सिर्फ इक्विलैटरल का, तो इसमें तो सारे हैं, इक्विलैटरल भी है, आइसोस्केल भी है, स्केलेन भी है, तो ये तो सबसेट होगा ही, ठीक है।
नेक्स्ट 7, एक सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये जो कलेक्शन दिया है इवन नेचुरल नंबर्स है, और इधर एक सच दैट x इज एन इंटीजर, इधर सिर्फ इंटीजर्स है, इंटीजर का कलेक्शन है। तो इंटीजर जो होता है 1 2 3 4 होता है, तो उसमें तो सारे तुम्हारे एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे, किसका, इवन नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि इंटीजर जो होता है उसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, और यहाँ पे सिर्फ इवन नेचुरल नंबर यानी सारे पॉजिटिव्स हैं और वो भी इवन है, तो सबसेट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Second, examine whether the following statements are true or false. Okay, examine whether the following statements are true or false। ट्रू और फॉल्स इसमें चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट ए बी ये गिवन है, बी सी ए, सेकेंड एक्स इज अ वॉवेल, in English alphabet, or 1 2 3 1 2 5 A B C, ठीक है। such that x is an even natural number less than 6, और सबसेट है एक such that x is a natural number which divides 36, which divides 36। ठीक है, देखते हैं फिर इसमें तुमको ट्रू और फॉल्स एग्जामिन करना है। ठीक है, देखो इधर सेट है, इधर भी एक सेट है। ठीक है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं, है ना। Every element of this set is also an element of this set. Okay, therefore here the symbol will be is a subset of, okay, therefore it is false। इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो यहाँ पे सबसेट होना चाहिए ना, इसलिए false है। ठीक है, इधर देख लो, इसमें A और E है इस सेट में, और इस सेट में एक सब्जेक्ट एक वॉवेल यानी इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है, मतलब A E I O U है, 5 है ना इसमें, A E I O U, तो A और E इसमें बिलोंग तो करेगा ही, तो ये सबसेट है, तो इसका मतलब ये ट्रू हुआ। ठीक है, थर्ड, इस सेट में 1 2 3 है, इसमें 1 2 6 था ना, शायद 6 था, 5 है, 5 देख लो, सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है ना, ये सबसेट लगाया है, ये तो नॉट सबसेट होना चाहिए ना। देख लो, इसके एलिमेंट्स A है, इसके एलिमेंट्स A B C है, तो इसका एलिमेंट इसमें है, मतलब सबसेट है, मतलब ये ट्रू है। इसमें A है और इसमें A B C है, ये बिलोंग्स लगाया है, तो जैसा कि बिलोंग्स टू का मतलब कि ये एक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ये सेट दिया है, कोई बात नहीं, एक सेट का एलिमेंट्स एक सेट भी तो हो सकता है। तो देख रहे हैं इसमें क्या कहीं ऐसा अंदर दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ A B C दिख रहा है, ऐसा थोड़ा नहीं दिख रहा है ब्रैकेट के साथ, मतलब इसमें ये बिलोंग नहीं करता है। अगर बिलोंग करता तो ऐसा होना चाहिए इस सेट में, ठीक है ना, A B C ऐसा होना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें ऐसा ब्रैकेट में तो कहीं नहीं है, इसलिए क्या है, फॉल्स है, बिकॉज इसमें ए बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, 6 नंबर देख लो, एक सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से लेस और इवन होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए। तो 6 से कम नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा, और उसमें इवन क्या होगा, 2 और 4 होगा ना, मतलब यहाँ पे 2 और 4 मिला पहले, और ये सबसेट लगाया है। और इधर देखो, एक सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36 को कौन नेचुरल नंबर डिवाइड करता है, 2 से डिविजिबल है वो, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, ऐसे वो 6 से भी डिविजिबल है। तो हमें इतना से ही पता चल गया, ये एलिमेंट्स तुम्हारे इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट होगा, मतलब ये ट्रू होगा। और भी इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, देखो 12 से भी डिविजिबल है, ये 9 से भी डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, 18 से भी हो सकता है, 36 से भी हो सकता है, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब तो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 36 फाइनल होगा तुम्हारा, 36/36 इक्वल टू 1। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें है, तो ये सबसेट होगा, मतलब ये ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, let a is equal to 1 2 3 और 4 5। देखो एक एलिमेंट्स गिवन है, 1 है 2 है, ये भी एक एलिमेंट ही है, सेट के रूप में दिया है, ठीक है। और ये 5, फर्स्ट 3 और 4 ये सेट गिवन है, और कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इसमें चेक करने की स्टेटमेंट्स कौन से इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट हो गया 3 और 4, ये सबसेट ऑफ सेकंड देखो, इसमें करने हैं विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, देख लो, एंड व्हाई। ये सेट गिवन है, फर्स्ट ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है सेट ए में, मतलब ये देख लो 3 और 4, इसमें 3 और 4 तो नहीं दिख रहा हमें अकेले, ये तो खुद एक ये एलिमेंट है। सेट ए के कितने एलिमेंट्स है, 1 2, ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, तो देख रहे हैं कि इस सेट में 1 2 ये 3 और 4 है, कहाँ, इसमें तो नहीं है ना, 3 और 4 इसके एलिमेंट्स 3 और 4 है, इसमें है नहीं है ना, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है, इनकरेक्ट, INC लिखो शॉर्ट में, या फिर इसके अगर सारे एलिमेंट्स इसमें होता तब ये सबसेट होता, तो सारे एलिमेंट्स तो है नहीं, इसलिए ये इनकरेक्ट। सेकंड देख लो, इसमें 3 और 4 है, कह रहे कि ये एलिमेंट इस सेट ए में बिलोंग्स कर रहे हैं, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है 3 और 4 सेट ए का, देख लो है ना, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सेट के अंदर
एक एलिमेंट है ये 3 और 4, ओके, ये पूरा एक एलिमेंट होगा। अब देख रहे हैं कि इस सेट का एक एलिमेंट इस सेट में है 3 और 4 करके, ये पूरा ये एक सेट इसमें है, तो इसका एलिमेंट इसमें है तो ये सबसेट होगा, ठीक है। फिर देखते हैं फोर्थ नंबर, 1 बिलोंग्स टू ए, ये तुम्हारा करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट इसमें है ना, ये तो ये करेक्ट सबसेट होगा। ये फोर्थ देख लो, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, देख लो 1 है इसमें, तो ये भी करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो सिर्फ एलिमेंट है ना, सबसेट के लिए तो यहाँ सेट होना चाहिए, सेट तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट। यहाँ देखो 6 नंबर, इस सेट में 1 to 5 है, इस सबसेट ऑफ, सबसेट होने के लिए सभी एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, 1 to 5 है, 1 to 5, इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। 7 देख लो, 1 to 5 बिलोंग्स टू, ध्यान दो, ये बिलोंग्स का मतलब ये पूरा एक एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है नहीं ना, ठीक है, ये सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे देखो, ये बिलोंग वाला जब भी सिंबल आएगा तो समझना कि इधर एलिमेंट होगा, ठीक है ना, तो ये तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, 1 2 और ये 1 और ये। तो 8 नंबर, इस सेट के 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, इसमें है नहीं है ना, 3 तो है ही नहीं, तो इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होना चाहिए, ये सबसेट दिया है इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है सेट में, कहाँ 5 दिख रहा है, इसमें तो 4 ही एलिमेंट है ना, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा। 10 नंबर देख लो, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज ऑलवेज ट्रू, ओके, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट हो, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट्स ही नहीं होता है, तो सारे का सबसेट होगा। देख लो 11, इस सेट में एक एलिमेंट है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए कह रहा है, सबसेट का मतलब इसका एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो 5 जो एलिमेंट है इसमें कहाँ है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 4 नंबर, रीजन ऐसे ही लिख सकते हो, बिकॉज दिस एलिमेंट, ये इनकरेक्ट लिखा है ना, जैसा कि फिर से बता दे रहे हैं इसका रीजन कैसे लिखोगे, देखो जैसे कि ये सेट है, सेट में एलिमेंट्स है 3 और 4 और सबसेट है ए का, तो सबसेट है मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग्स करने चाहिए, है ना, 3 और 4, तो इसमें 3 और 4 अकेले एलिमेंट्स के रूप में थोड़ा नहीं है, इसलिए ये क्या था, इनकरेक्ट था ना, तो लिखेंगे हियर 3 and 4 does not belongs to, ऐसे 3 and 4 does not belongs to A, okay, therefore it is incorrect, ऐसे ही स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। Fourth number, write down all the subsets of the following sets. Write all the subsets of the following sets. सारे सेट्स का सबसेट लिखना है। देखो फर्स्ट यहाँ पे ए दिया है, जैसे कि इस सेट के एक एलिमेंट है ना, इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, तो सबसेट जैसा कि हमें पता है 5 जो होता है एम्प्टी सेट, वो तो सारे का सबसेट होता है ना, सारे सेट का, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर पहला सबसेट तुम्हारा 5 होगा। सेकेंड, अगर एक हम एलिमेंट ले रहे हैं सिर्फ ए, तो इस सेट का एलिमेंट ए इस सेट में तो बिलोंग कर रहा है, तो ये भी एक सबसेट होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें 2 मिला, ठीक है, सबसेट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सेकंड देखो ए और बी है, इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं, ये सबसेट है तुम्हारा, ठीक है ना। देखो इसके लिए सबसेट्स कितने होंगे, फर्स्ट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सब में हम ये लिख लेंगे 5। उसके बाद अगर सिर्फ एक एलिमेंट लिख रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं एक सेट में, तो
तो ये इस सेट का एलिमेंट ए इसमें तो बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट होगा। ओके, अगर सिर्फ बी भी ले रहा है तो इस सेट का बी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, मीन्स ये इसका सबसेट होगा। अगर ए और बी ले रहे हैं, इसके एलिमेंट इसमें है ना, मतलब ये भी एक सबसेट होगा। तो ये 4 मैक्सिमम सबसेट हुए, ठीक है। थर्ड 1 2 3 है, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट्स है और सारे सबसेट्स लिखने हैं। देखो सबसे पहले 5 तो सबका सबसेट होगा, उसके बाद अकेले एक एलिमेंट 1 2 भी लेंगे तो सबसेट होगा, 3 भी सबसेट होगा। उसके बाद अगर 1 2 ले रहा है तो भी सबसेट होगा, 1 और 3 ले रहा है तो भी सबसेट, 2 और 3 ले रहा है तो भी सबसेट होगा, और सारा ले लेंगे एलिमेंट तो भी सबसेट होगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फार्मूला से चेक भी कर सकते हो। 3 एलिमेंट है तो पावर सेट का कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 to the power 3 मीन्स 8 तो आ ही गया। ऐसे 4 है, 4 नंबर है 5। देख लो 5 मीन्स इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट तुम्हारा इसके कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो इसका सबसेट जो होगा सिर्फ एक ही होगा, 5 ही, क्योंकि 5 के अलावा क्योंकि उसमें एलिमेंट तो होते नहीं हैं, तो फिर बिना एलिमेंट वाला यही है एक।